Good morning, students. Now, this is the another lecture of the design of the riveted joint. ये जो आपका लेक्चर है, this is based on the eccentric loading riveted system. अब पहले इससे पहले जो रीकैप था उसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे, we have described about the number of joints, you can say, that the lap joint, what joint. We have discussed about the strength equations, efficiency of the joints, and also the longitudinal as well as the circumferential joint. But in all that cases, we have seen one thing, that the force is passing through the, in that case, force or the load, you can say, that is passing through the centroid of the riveted system. उस केस में, but we have assumed that कि जो आपका लोड है वो आपका रिफ्टिंग, जो आपका रिफ्टेड सिस्टम है, जहाँ पे जो आपने रिफ्टिंग लगाई है, जो भी आपका रिफ्टिंग सिस्टम होगा, उसके सेंट्राइड से लोड आपका पास कर रहा था. यस, that is we have assumed in that cases. But now the topic which I am taking today, that is the eccentric loading riveted system. So what is eccentric loading? First we must understand this कि हमारा eccentric loading क्या चीज है. Eccentric loading means when the load does not pass through the centroid of the riveting system, means it is at some distance away from the riveting system, centroid of the riveting system. जब आपका लोड जो है वो ये आपका centroid है, this is your riveting system. There are the 4 rivets here. These are the 2 plates. This is a red color plate. This is plate number 1, and this is your plate number 2. We have riveted this plate number 1 with the plate number 2 by means of the 4 rivets, which are placed at equal distance from the centroid, right? Which are placed at equal distance from the centroid. तो उसमें आप देखिए, जहां पे आप देखिए ये जो लोड है आपका, ये लोड P that is acting on this plate. You can say this is plate number 2 and this is plate number 1. So this load is acting at this distance, and you can see that the distance of the load, this is equal to E from the centroid of the riveting system, right? J जो आपका riveting system है, this is the centroid or the CG, right? तो जहां से जो लोड का डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? That is equal to E. E is called the eccentricity. E is called the eccentricity, means that load is acting at some distance, or you can say the distance between the centroid of the CG, centroid of the riveting system, and the load where the load is acting. That distance is called the eccentricity, right? That distance is called the eccentricity, and this type of the loading, that is called the eccentric loading. You understand that? Eccentric loading क्या है? कि eccentric loading ये है कि जब आप कोई लोड जो है उसमें अप्लाई करेंगे और लोड आपका वो that is not passing through the centroid of the riveting system, that is away from that, or you can say that is equal to at the distance E from the centroid of the riveting system. That type of the load or that type of the loading is called the eccentric loading. You understand this point? That type of the loading is called the eccentric loading, right? तो इस केस में देखिए ये लोड जो है इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा था. तो अगर आपका लोड जो है जहां पे अप्लाई करेगा एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द CG, सो व्हाट हैपन्स, वहां पे क्या होगा? वहां पे शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी.
एक shear stress आपकी प्रोड्यूस होगी जहां पे लोड होने से क्या होगा, जहां पे क्या होगा, मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। जहां पे क्या होगा, मूवमेंट क्रिएट होगा, और मूवमेंट से क्या होगा, आपकी एक शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। एक शेयर स्ट्रेस तो आपकी जो लोड जो एक्ट कर रहा है वहां पे से डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, और दूसरी जो शेयर स्ट्रेस है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वहां दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर मूवमेंट जहां पे क्रिएट होगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो यू कैन से देयर आर, व्हेन the condition is like this, when there is the, you can say, eccentric loading, in that case there are two types of the shear stresses will produce, right? Two types of stresses will develop there. One is due to the load P, and the second one is due to the movement which is developed at the center of centroid, right? तो क्या होगा, दो शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आप कह सकते हैं कि इफेक्ट क्या होगा, व्हेन देयर इज ए दिस टाइप ऑफ द लोडिंग, व्हेन दिस टाइप ऑफ द लोडिंग, तो इफेक्ट क्या है इसका, इफेक्ट इसका होगा वन शेयर स्ट्रेस that is direct shear stress will be developed due to the load P, and सेकंड क्या होगा, सेकेंडरी shear stress, secondary shear stress will develop due to the movement at the centroid. सो इसका क्या इफेक्ट होगा कि हमें इस केस में हमें दो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ये याद रखें पॉइंट, इसमें क्या होगा कि हमें दो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। एक शेयर स्ट्रेस जो है वो हमें मिलेगी जो इसका लोड P एक्ट करेगा, तो लोड P से हमें एक शेयर स्ट्रेस मिलेगी जिसे हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कहेंगे, एंड दैट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रिवर्स, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रिवर। सो इट मीन्स दैट द डायरेक्ट फोर्स, अगर डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रिवर्स है, तो जो डायरेक्ट फोर्स होगी, डायरेक्ट शेयर फोर्स होगी, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द फोर रिवर्स, राइट। तो जो आपकी डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होगी ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इन ऑल द फोर रिवर्स, राइट, बिकॉज दीज फोर रिवर्स आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस 1 2 3 4 एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द centroid of the riveting system, right? You understand this point? तो क्या होगा, दोबारा इसको सुनिए कि इस केस में ये जो आपका एसेंट्रिसिटी वाला केस था, व्हाट इज द एसेंट्रिक लोडिंग क्या होगी, जो हमने पीछे आज तक इसको डिस्कस किया था, जो भी हमने रिवेटेड जॉइंट के बारे में पढ़ा, लैप जॉइंट आया था, बट जॉइंट है, वेरियस टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, इन ऑल दैट केसेस वी हैव अज्यूम्ड दैट द लोड इज पासिंग थ्रू द centroid of the area of the riveting system, right? जो लोड था वो that is passing through the CG or the centroid of the riveting system के बीच में से पास कर रहा था। But this is the condition, सेंट्रिक लोडिंग में क्या कंडीशन होगी कि जो आपका लोड होगा वो आपका जो सेंट्राइड होगा उससे दूरी के ऊपर ये लोड एक्ट करेगा, मींस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइड ऑफ द रिवेटिंग सिस्टम। तो जब ये
इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, मींस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ दैट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रिसिटी, डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द centroid of the repeating system, that is denoted by E, and this is called the eccentricity. That distance is called the eccentricity, right? तो जब ये लोड इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, जहां पे क्या होगा, एक मूवमेंट क्रिएट होगा। जहां पे क्या होगा, मूवमेंट क्रिएट होगा, सेंट्राइड में एक मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। तो मूवमेंट क्रिएट होने से क्या होगा कि वहां पे एक और आपकी शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। एक तो शेयर स्ट्रेस आपके प्रोड्यूस होगी जो आपका डायरेक्ट लोड आप एक्ट कर रहा है उससे, और दूसरी जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी जो जहां पे सेंट्राइड में मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। सो यू कैन से दैट इन दैट केस वी विल गेट two types of the shear stresses. In that case, we will get two types of the shear stresses. That one is the direct shear stress, which is equally distributed in all the rivets. If there are the 4 rivets, this is equally distributed in all the 4 rivets. And the second one, that is the direct shear stress, secondary shear stress, that is also equal in magnitude. If the distance of the rivets from the centroid इज इक्वल, अगर रिवर्स का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से बराबर है तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी, इस केस में क्या होगी, सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस भी क्या होगी, वो भी इक्वल होगी, राइट, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो जहां तक जो मैंने पढ़ाया है ये एक इसका इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि बेसिक क्या है कि हमारा सेंट्रिक लोडिंग क्या चीज है और इससे हमें क्या इफेक्ट होगा, क्या हमें मिलेगा, राइट। अब इसके आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की तरफ कि हम क्या क्या मिलेगा। कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनको हमने रिफ्टिंग किया है और लोड जो है जो आपका इसका रिफ्टिंग सिस्टम है उसके एट सम डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस रिवेट के ऊपर स्ट्रेस जो है ज्यादा होगी और कौन सी रिवेट जो है क्रिटिकल होगी, कौन सी रिवेट के चांसेस फेलियर के ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और इसको हम 1 बाय 1 इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ में इसका कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अब समझिए कि ये तो जहां तक आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट। अब अगर आपकी रिवर्ट्स जो हैं, जैसे ये मैंने जो क्वेश्चन जहां पे लिया, जहां पे देखा कि रिवर्ट्स जो है दैट इज प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ दिस, तो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड द सेंट्रॉइड हियर। इस केस में सेंट्रॉइड निकालना बहुत इजी है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली एवरी टाइम पॉसिबल दैट द रिवर्ट्स दैट इज हैविंग द सेंट्रॉइड लाइक दिस, राइट। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्ट्स का एक सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें जब भी हम स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट द centroid, to calculate the centroid of the रिवेट सिस्टम। हमें कि सबसे पहले क्या करना है कि इसमें सेंट्राइड कैलकुलेट करना है, राइट। तो जहां पे देखिए 4 रिवेट्स हैं, जहां पे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दे आर ऑल प्लेस्ड, तो जो इसका इनका सेंटर होगा दैट इज अ सेंट्राइड। अदरवाइज देखिए क्या है, जैसे ये 4 रिवेट्स हैं, तो ये तो खैर आपने पहले भी किया है किस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये आप ले लीजिए, ये आपका OX है, ये आपका Y है, राइट। तो इसमें देख लीजिए आप, तो ये आपका रिवेट है, दिस इज योर रिवेट, राइट, दिस इज योर OY। हमें फाइंड आउट करना है कि जहां से लेकर जहां तक डिस्टेंस कितना है ना, OY Y वार कितना है और X वार कितना है, राइट। Y वार कितना है और X वार कितना है, तभी हम इसका CG निकाल सकते हैं, राइट।
तो देख लीजिए, लेट अगर मैं कहूं कि इन सारे रिवर्स जो हैं ये दैट इज ऑफ द इक्वल साइज, तो आप कह सकते हैं लेट ए इज द एरिया ऑफ द रिवर्स। आप ए क्या है, रिवर का एरिया है, तो आपका x1 कामा x2 x3 and x4 are the distances of rivers from OY, right? x1 x2 are the distances of the rivers from OY. इसी तरीके से y1 कामा y2 y3 and y4 are the distances of the river from OX, right? ये OX से इसका कितना डिस्टेंस है, राइट? दिस इज फ्रॉम OX का जो डिस्टेंस है ये हम y के शो करेंगे, और जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम OY है दैट इज योर डिस्टेंस x, right? x1 x2 x3 x4 are the distances of the river from OY, and y1 y2 y3 y4 are the distances of the rivers from OX, right? Now what is your x var? So we know that, तो x var क्या होता है, x var, right? This is x var, this is होगा a1 into x1 plus a2 into x2 plus a3 into x3 plus dash dash dash। सपोज मैं कहता हूं जहां तक 4 रिवर्स में n ले लेता हूं, राइट? इसी तरीके से आपका जो y बार होगा वो होगा a1 into y1 plus a2 and divided by a1 plus a2 plus a3 plus dash 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 n, राइट? अब इनका एरिया तो बराबर है सभी का, a1 a2 a3 वगैरह बराबर है, राइट? तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, therefore x var this is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dash 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 n divided by n। जहां पे a कॉमन ले लो, जहां से a कॉमन ले लो, नीचे बचेगा n, तो ये आपका आ गया x बार, राइट? तो y बार क्या आएगा, व्हाट इज योर y बार भी इसी तरीके से आएगा, y1 plus y2 plus y3 n divided by n, right? This is your y बार। तो x बार y बार आपका आ गया, तो आप क्या करेंगे, x बार क्या होगा, x बार होगा ये वाला डिस्टेंस, तो जहां से देखेंगे x1 किस पॉइंट के ऊपर है, y किस पॉइंट के ऊपर है, जहां पे जो दो पॉइंट्स मिलेंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, सेंट्राइड होगा, वहां पे क्या होगा, सेंट्राइड होगा। ये हो गया तरीका आपका सेंट्राइड निकालने का। अगर आपका जो रिबट सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं है कि आप इजीली इसका सेंट्राइड जहां से देयर आर इक्वल डिस्टेंस, देयर आर 4 रिबट्स, सो डेफिनेटली centroid in the center, but the problem or the case you will not get like this. You will get the different type of cases where you have to find out the centroid first. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका centroid निकालना पड़ेगा। When you have to solve the numerical, तो you have to first calculate the centroid of the riveting system, कि उसका centroid कहाँ पे पड़ता है। तो centroid is the first step to find out, right?
क्योंकि सेंट्राइड स्टेप जो है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ही हम जो डायरेक्शन होगी आपकी सेकेंडरी शियर फोर्स की डायरेक्शन हमें सेंट्राइड से ही हमें पता चलेगी, और जहां से हमें ये पता चलेगा कि जो रिबट सेंट्राइड से दूर जितनी ज्यादा दूर है वहां पे वो रिबट्स उतनी ज्यादा ही क्या होगी, क्रिटिकल होगी, राइट। उसमें क्या होगा, ज्यादा क्रिटिकल होगी, वो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेस आपकी ज्यादा होगी। दैट वी विल अंडरस्टैंड कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सेंट्राइड ऑफ द रिफ्टिंग सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स थी इसमें आपको सेंट्राइड निकालने की जरूरत नहीं थी। दैट आई एम जस्ट गोइंग डायरेक्टली हियर, तो मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया था कि सेंट्राइड इज एट द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ द रिवर्स। जो भी चारों रिवर्स का जो एरिया था उसके जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पे ही इसका सेंट्राइड होगा। बट यू विल नॉट गेट द केस लाइक दिस। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्राइड निकालना पड़ेगा, और सेंट्राइड आपका निकालने का ये तरीका है। दिस इज द पॉइंट। सो दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम एक्चुअली इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर, डेरिवेशंस के ऊपर, कि हमें किस तरीके से इसको मिटा देता हूं, इसे किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। जरा देखिए आप, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एक रिफ्टिंग सिस्टम जहां पे मैं डेवलप कर लेता हूं सेपरेटली। तो समझाने के लिए आपको, तो क्या है, एक ये हो गया पॉइंट। और जहां पे ये सपोज जहां पे आपका लोड है, आपका पी आपका लोड है ना, तो ये आपका सपोज करो आपका क्या है, जी है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया ई, राइट। अब देखिए दिस इज योर जी, मैं क्या करता हूं, आई जस्ट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हियर टू हियर। ये जो लोड आपका पी इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे क्या करो, ट्रांसफर करो। एंड व्हेन यू विल ट्रांसफर द लोड एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट सेंट्राइड, तो क्या होगा, एक तो आपको क्या मिलेगा, एक आपका जे लोड नीचे को, ये आपको मिलेगा पी, ये लोड आ गया जहां पे मैंने ट्रांसफर किया। और दूसरा हमें ट्रांसफर करने से क्या मिलेगा, वी विल गेट द मूवमेंट, दैट इज P into E, right? We will get the moment P into E, right? So क्या करें, understand this, transfer this load at the centroid of the lifting system. We will get, one is the load which is acting vertically downward, and the second one we will get the movement that is equal to M is equal to P into E, right? तो जहां पे मैं ट्रांसफर किया, सो आप कह सकते हैं ट्रांसफर द लोड, that is P at the centroid, right? So one क्या है, डायरेक्ट लोड P is acting vertically, downward direction,
and second you will get moment P into E. मोमेंट कौन सा मिलेगा आपको? P into E, that is clockwise मोमेंट, राइट? सो ये दो चीजें हमें मिलेंगी जब मैं लोड को उस पॉइंट के ऊपर ट्रांसफर करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा? एक डायरेक्ट लोड P मिलेगा जो कि सेंट्राइड से क्या है, ट्रांसफर किया ना मैंने ये लोड, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वन इज द मूवमेंट P इनटू E, राइट? अब क्या है, अब जो ड्यू टू द क्या होगा, जब ये लोड आपका नीचे को एक्ट करेगा, राइट? सो जहां तक क्लियर है आपको? अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, ड्यू टू द लोड P, लोड P से क्या होगा, हमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलेगा. ड्यू टू द लोड P वी विल गेट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. अब ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमें किस तरीके से मिलेगा? अगर आप देखिए जो रिबट्स है, रिबट दे आर इंसर्टेड लाइक दिस, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, रिबट्स का जो क्रॉस सेक्शन होगा, दैट इज पैरेलल टू द लोड P. तो क्या होगा, जहां पे एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. सो वन शियर स्ट्रेस विल प्रोड्यूस by the load P, and due to the movement, अब मूवमेंट से भी क्या होगा, ड्यू टू द मूवमेंट P इंटू E, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी. शियर स्ट्रेस विल डेवलप. अब पहले मुझे बताइए, जो जहां पे जो मूवमेंट होगा, ये कौन सा मूवमेंट होगा? ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, टॉर्शनल मूवमेंट होगा, या बेंडिंग मूवमेंट होगा? देखिए जो टॉर्शनल मूवमेंट का, जैसे मैंने आपको भी पहला बताया था, क्योंकि ये रिवर्स इस तरीके से है, सो दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस, दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस, दिस ये जो आपका क्या है, ये है नॉर्मल एक्सिस ऑफ द रिवर्स. और जो लोड है, ये इस तरीके से इसमें मूवमेंट जो है लगाएगा, ये जो लोड है ये मूवमेंट इस तरीके से लगाएगा, दैट विल अप्लाई द मूवमेंट लाइक दिस. सो इट मींस दैट इट इज दैट दिस मूवमेंट इज ऑन द नॉर्मल एक्सिस. और जब किसी नॉर्मल एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्शनल मूवमेंट कहते हैं, राइट? तो क्या होगा, टॉर्शनल मूवमेंट क्रिएट होगा. तो टॉर्शनल मूवमेंट क्रिएट होने से क्या होगा, हमारी जो शियर स्ट्रेस है वो कौन सी शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, यहां पे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. क्या होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस विल डेवलप, राइट? क्यों टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगी? क्योंकि ये जो मूवमेंट है आपका P इंटू E, ये कौन सा मूवमेंट है आपका, ये आपका टॉर्शनल मूवमेंट होगा, राइट? टॉर्शनल मूवमेंट होगा जो कौन सी स्ट्रेस को डेवलप करेगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा. तो जहां पे आपने देखा कि इन दिस केस देयर विल टू टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस विल डेवलप. व्हेन देयर इज ए eccentric लोडिंग, two type of the stresses will develop. One is the direct shear stress and the second one is the torsional shear stress, right? Now you understand. अब देखिए इसमें अगर हमारे पास दो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी तो क्या होगा कि हम इसका निकालने के लिए हमें क्या है, इसको स्ट्रेस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो इंटरनल फोर्स जो है
we have to calculate the internal force, because the internal force per unit area, this is equal to the stress, right? Internal force per unit area, this is equal to the stress. Here जहां पे जैसे हमने वेल्डिंग के केस में पहले मैंने लेक्चर दिया था, बट उस केस में अगर आप वेल्डिंग के केस में देखिए, वहां पे हमने क्या था, स्ट्रेसेस को डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया था, बट इस केस में हम स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज सम यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ थिंग। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करें, हम इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ड्यू टू द लोड P, अगर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, राइट, तो क्या होगा इसमें, जहां पे क्या होगा, ड्यू टू द लोड P क्या होगा, जहां पे इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा, इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, राइट। तो इंटरनल फोर्स जो आपका है वो क्या होगा, दैट इंटरनल फोर्स इज यू कैन से डेवलप होगा। और इस इंटरनल फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया से डिवाइड करें, सो वी विल गेट द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ P, इंटरनल फोर्स विल डेवलप and then the direct shear stress will develop, right? That internal force, you can say, that is equally uniformly, or the stress, you can say, stress is uniformly distributed among all 4 rivers. You can say, अगर आपका shear stress जहां पे जितना है इस रिवर पे, उतना ही इसमें है, उसमें इतना ही इसमें है, और इतना ही इसमें है। तो इसका मतलब है अगर आपका स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका क्या होगा, जो आपका शेयर लो इंटरनल फोर्स होगा, राइट, या शेयर फोर्स होगा, वो भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन मैग्नीट्यूड। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? पहला पॉइंट आपको समझ आया कि इस केस में आई एम सेइंग दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्ट स्ट्रेस दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 4 रिवर्स। इफ देयर आर 6 रिवर्स, 7 रिवर्स, 8 or 9 like this, so we just assume that the stress is equally distributed among all the 4 or 5 or 7, 8, 9 rivers। तो अगर आपका स्ट्रेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो इंटरनल फोर्स है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इस केस में अगर मैं कहता हूं कि आपका इंटरनल फोर्स आपका है P डैश, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू the load P, due to the load P, है ना, so you can say primary shear force जो डेवलप होगी that is PS, और जो क्या होगी, PS होगी, राइट। दैट इज प्राइमरी शेयर फोर्स जो डेवलप होगी वो क्या होगी, PS होगी, और दैट फोर्स इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द रिवर्स, राइट। इफ देयर इज द 4 नंबर ऑफ रिवर्स, अगर जहां पे 4 नंबर ऑफ रिवर्स है, तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी फोर्स आर, यू कैन से हम P डैश भी से लिखें, तो P डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, P upon 4। You understand this? P dash क्या है आपकी प्राइमरी शेयर फोर्स एट दिस इज इक्वल टू P upon 4। पे 4 मैंने क्यों लिया, बिकॉज आई एम हैविंग a 4 number of rivers here. If there is a n number of rivers, so then this is primary force is equal to, if there is a n number of rivers, अगर आपका n number of rivers होगा, n number of rivers, अगर आपका n नंबर ऑफ रिवर्स होगा, तो आपका जो PS है वो क्या होगा, सॉरी यस, आपका PSR P डैश जो है दिस इज इक्वल टू P अपॉन N, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये आपका आ गया प्राइमरी शेयर फोर्स, राइट। दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवर्स। तो अगर आपका लोड जो है, डायरेक्ट लोड आपका P था, तो इसमें शेयर फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल टू P/4। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ कम टू इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपने निकाल लिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट शेयर फोर्स, प्राइमरी शेयर फोर्स, ये आ गया P/4, मींस टोटल लोड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिवर्स। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की।
जब डायरेक्शन इसकी कैसे होगी, डायरेक्शन, लोड तो आपका आ गया, अब डायरेक्शन देखिए आप जहां से, दिस लोड इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या है, प्राइमरी शियर फोर्स आर द इंटरनल फोर्स, और यू कैन से दैट इज द रेजिस्टिंग फोर्स, दैट इज द रेजिस्टिंग फोर्स। अगर ये लोड जो है नीचे को एक्ट कर रहा है, तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो आप कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से, P डैश P डैश P डैश P dash, right? So this, the direction of the primary shear force or the direct force, primary shear force, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, vertically upward direction, because this is the internal force. Internal force means internal resisting force. If this load is acting in the vertically downward direction, तो क्या होगा, जो जहां पे इंटरनल फोर्स इन चार रिवर्ट्स के ऊपर डेवलप होगी, जिसको हम प्राइमरी शियर फोर्स भी कहते हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो लोड की डायरेक्शन होगी, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी। और अगर लोड की डायरेक्शन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो फर्स्ट हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा लोड P था, उससे हमें जो प्राइमरी शियर फोर्स लोड P था, हमें क्या डेवलप हुआ, लोड P से हमें जो डायरेक्ट लोड लग रहा था, उससे हमें क्या मिला, हमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इंटरनल फोर्स, जो अपने शियर फोर्स डायरेक्ट, अगर यू कैन से दिस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई, तो आपका शियर फोर्स डेवलप हुआ। और जो शियर फोर्स था, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, वो दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये आपकी शियर स्ट्रेस जो थी वो चारों रिवर्ट्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो आपका जो इंटरनल फोर्स होगी दैट इज आल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द फोर रिवर्ट्स, राइट। सो यू कैन से दैट PS means shear force on one rivet. ये PS क्या है? That is the shear force on one rivet. That is P1 dash. This is equal in all the four rivets. So this is equal to, if there are the four number of rivets, so this is equal to P by 4. जहां तक आपको क्लियर है। अब आ जाइए डायरेक्ट आपकी सेकेंडरी shear force के बारे में, या सेकेंडरी shear stress। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी शियर फोर्स के ऊपर हम बात करते हैं। सेकेंडरी शियर फोर्स, अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको कि सेंट्राइड के ऊपर एक तो आपका लोड P, जब हम इसको जहां पे ट्रांसफर करेंगे, एक लोड आपका P जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और साथ में जहां पे क्या होगा, हमें सेंट्राइड में मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का क्या होगा, ड्यू टू द मूवमेंट P into E, राइट, ड्यू टू द मूवमेंट P into E क्या होगा, देयर इज ए shear force, right, or internal resisting force, राइट। तो मूवमेंट P अगर जो आपका क्या है, दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब मूवमेंट P होगा,
जहां पे क्या होगा कि इस मूवमेंट P से ये जो मूवमेंट कौन सा है, दैट इज अ टॉर्शनल मूवमेंट। और टॉर्शनल मूवमेंट से हमें क्या होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जहां पे डेवलप होगी। जो अगर आपका जो मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इन ऑर्डर टू रजिस्ट द मूवमेंट, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो जहां पे एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगी ड्यू टू द मूवमेंट दिस, एंड दैट इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी शियर फोर्स। यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी shear force, which will resist the moment, which is developed here at the centroid due to the eccentric loading। तो क्या होगा, जहां पे एक टॉर्शनल shear stress प्रोड्यूस होगी जो इस मूवमेंट को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इफ इट इज क्लॉकवाइज, सो इट्स डायरेक्शन दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका सेकेंडरी शेयर फोर्स डेवलप होगा। तो मैं कहता हूं कि सेकेंडरी शेयर फोर्स क्या थी आपकी, सेकेंडरी शेयर फोर्स P डैश, मैं लेता हूं सेकेंडरी शेयर फोर्स आपकी क्या है, P डैश आपकी डेवलप होगी, राइट। अब देखिए इसको, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सेकेंडरी शेयर फोर्स, अब देखिए सेकेंडरी शेयर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। So in order to find the secondary shear force, तो हमें एक दो assumptions हम जहां पे ले लेते हैं। तो एक दो हमारी assumptions क्या होंगी, फर्स्ट हमारी assumption होगी that secondary force is directly proportional to the radial distance of the rivets from the centroid, right। secondary force जो आपकी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द centroid। अगर हम ये जो रेडियल डिस्टेंस हम लेते हैं रिवर्स का, जैसे ये जहां पे इसका बना लेते हैं हम अच्छा सा, so मैं एक सेपरेट इसका रिफ्टिंग सिस्टम बना देता हूं। देखिए तो एक मेरी जे रिबट है, सपोज दूसरी मेरी जे रिबट है, J rivet. This is the 4 rivets, right? So rivet number 1, सेंट्राइड, राइट। तो पहली कंडीशन क्या थी कि इन ऑर्डर टू फाइंड द सेकेंडरी शेयर फोर्स, ये पहली हमारी assumption थी कि सेकेंडरी शेयर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्ट आप ये लिख लीजिए, secondary
shear force is proportional to the radial distances of the center of secondary shear force is directly proportional to radial distances from सेंट्राइड। तो पहला ये है कि जो सेकेंडरी शियर फोर्स होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिबर्स फ्रॉम द सेंट्राइड। तो जो रिबर्स हमारी सेंट्राइड से जितनी दूर होंगी, जितनी एक्सट्रीम होंगी, तो सेकेंडरी शियर फोर्स उसके ऊपर क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है और इसको मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा भी कि ये हमने असम्पशन लिया है ये क्यों लिया है। सेकेंडरी शियर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिबर्स ऑफ द सेंटर ऑफ रिबर्स फ्रॉम द सीजी, राइट। तो ये किसके जितनी रिबर्स, ये आपका सीजी है, सपोज दिस पॉइंट इज योर सीजी, राइट। तो जहां से जितनी दूर ये रिबर्स होंगे, ये तो चारों रिबर्स का सेम डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस इज सेम। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पे इन चारों रिबर्स के ऊपर जो आपकी शियर फोर्स होगी वो क्या होगी, आपकी सेकेंडरी शियर फोर्स बराबर होगी एज, अगर हम रेडियल डिस्टेंस की बात करें, राइट। लेकिन फिर दूसरा कंडीशन आता है कि अगर रिबर्स का डिस्टेंसेस सेम है तो आप कहते हैं कि इसमें सेकेंडरी शियर फोर्स बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई रिवर्ट आपकी क्रिटिकल होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए देन वी हैव टू सी द एंगल बिटवीन द प्राइमरी शियर फोर्स एंड द सेकेंडरी शियर फोर्स, एंड वेयर द एंगल इज मिनिमम यू कैन से देयर द सेकेंडरी शियर फोर्स इज मैक्सिमम। ये आगे जाके बात होगी, तो अभी एंगल तो मैंने दिया नहीं आपको, इट इज कंफ्यूजिंग टू यू, तो ये जस्ट मैंने आपको बताया था। अभी आप इतना ही याद रखें कि सेकेंडरी शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंसेस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिबर्स फ्रॉम सीजी, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड ये क्या है इसको हम इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि हमें अगर इसकी डायरेक्शंस को लेना है तो किस तरीके से करेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे आप सभी सेंटर से आप सभी को मिला दीजिए इस तरीके से, राइट। ये मिल गया, राइट। ये पॉइंट आपने क्या किया, रिबर्स के जो सेंटर थे इनको हमने इससे मिलाया, राइट। और आप क्या करेंगे, join from the center of rivers, join this line, तो आप कह सकते हैं कि अगर सेकंड में कहता हूं डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी फोर्स को करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ रिवर्स हैं 1 2 3 4, इन सेंटर ऑफ रिवर्स को सीजी के साथ लाइन के थ्रू इनको क्या कीजिए, मिला लीजिए, राइट। पहला पॉइंट क्या है कि सेंट्राइड ऑफ द रिवर्स सिस्टम को, जो इसके सेंटर्स हैं रिवर्स के, वहां से लाइन ड्रा कीजिए और इन सभी को आप जहां से मिला लीजिए, राइट। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर,
तो जे अगर आपका क्लॉकवाइज है, पहला जो मूवमेंट था क्लॉकवाइज है, तो जो सेकेंडरी शियर फोर्स होगी या टॉर्शनल मूवमेंट जो जहां पे होगा, जो जहां पे टॉर्शनल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या करेंगे, सेकंड है कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, राइट। ये डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये आपका आ गया पी ए डैश, ये दिस इज योर पी बी डैश, दिस इज पी सी डैश एंड दिस इज पी डी डैश। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसको डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के क्या करना है, ये जो जो रिबर्स के जितने भी सेंटर्स होंगे, रिबर के सेंटर से आपने लाइन ड्रा करनी है और सेंट्राइड से इसको मिला लेना है। इधर से आपने लाइन ड्रा की, इधर मिला लिया, इधर से लाइन ड्रा की सेंटर ऑफ द रिवर्स टू द सेंट्राइड्स, जहां से ली ये जो लाइंस जो होंगी, इन लाइंस के जो परपेंडिकुलर होगा, आप इन लाइंस पे क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को देने के लिए सेकेंडरी शियर फोर्स की इन लाइंस के ऊपर क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी शियर फोर्स। अब परपेंडिकुलर आप कह सकते थे कि मैं परपेंडिकुलर तो इस साइड पे क्यों भी ड्रा कर सकता था, राइट, मैं इधर भी तो ड्रा कर सकता था। व्हाई आई हैव नॉट ड्रॉन लाइक दिस। जहां पे आप देखें जो आपका मूवमेंट है, जहां पे आपका मूवमेंट जो है वो क्या है, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना है, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर तो इस साइड के भी हो सकता था, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता था, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता था, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता था, बट आई हैव टेकन द परपेंडिकुलर टुवर्ड दिस साइड। व्हाट इज मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेजिस्टिंग मूवमेंट होगा, जो आपका जहां पे टॉर्शनल मूवमेंट क्रिएट होगा, जहां आपकी जो रेजिस्टिंग फोर्स होगी, सेकेंडरी शियर फोर्स होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर तो होगी, बट जो आपका एक्चुअल मूवमेंट जहां पे हुआ था, दैट इज P इंटू E, अगर वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करने के लिए आई हैव टेकन द परपेंडिकुलर्स टुवर्ड्स दिस साइड। इसका परपेंडिकुलर देखो, ये इस तरीके से पेट कर रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज clockwise direction, so I have taken the perpendicular like this, right? Now you understand how we will take the direction of this. अब देखिए, तो ये होगी प्राइमरी शियर फोर्स। अगर इसी के बीच में, दोनों के बीच में, जब मैंने आपको एंगल की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, तो प्राइमरी शियर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो वर्टिकल होगी ऐसे। ये हम दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर ड्रा करेंगे, P डैश A, राइट। P डैश B, P dash C and P dash D. This is the angle. Sorry, sir. This is the angle. This is the angle, and this is the angle, right? अब मैंने इन दोनों को, प्राइमरी शियर फोर्स को और सेकेंडरी शियर फोर्स को एक ही जगह के ऊपर ड्रा कर दिया था। अब जहां से देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जहां पे आपने देखा कि रिबट्स जो हैं वो सेंट्राइड से इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हैं। जब रिबट्स आपकी सेंट्राइड से इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर होंगी तो मैंने आपको बोला था कि जो आपकी सेकेंडरी शियर फोर्स होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, राइट। तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिबट ज्यादा क्रिटिकल है। अगर इसके डिस्टेंसेस आपके बराबर थे तो ऑन दैट बेसिस वी से कि रिबट्स जो थी वो क्या है, अगर बराबर में है तो दे आर हैविंग, अगर दे आर ऑन द इक्वल डिस्टेंसेस,
so definitely they are also having the equal shear force. अब सेकंड तरीका था, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव टू सी द एंगल बिटवीन द प्राइमरी फोर्स एंड द सेकेंडरी फोर्स. सो प्राइमरी फोर्स भी मैंने ड्रा किया, सेकेंडरी फोर्स भी मैंने ड्रा किया, और एक पॉइंट के ऊपर, एक जगह के ऊपर ये प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स मैंने ड्रा कर दिया. अब जहां से आप देखेंगे कि ये देखिए जे एंगल क्या है, ज्यादा मैक्सिमम है, दिस एंगल इज मैक्सिमम, जे एंगल मिनिमम है, ये एंगल मिनिमम है, आइदर दिस और दिस. तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस के, इन दोनों के एंगल आपस में बराबर होंगे. तो आइदर बी रिबट वी इज मोर क्रिटिकल और रिबट डी इज मोर क्रिटिकल बिकॉज दीज एंगल्स आर मिनिमम. तो जहां पे सेकंड पॉइंट था कि हमें ये देखना होता है कि एंगल मिनिमम कहां पे है. जहां पे एंगल मिनिमम होगा वहां पे क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो क्या होता है, मैक्सिमम होगा. एंगल जहां पे मिनिमम होगा वहां पे स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा. तो चलो ये चीज आपकी क्लियर हो गई. तो डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी, सेकेंडरी शियर फोर्स भी आपको बता दिया. अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी हमारी कैलकुलेशंस क्या होगी. तो सेकेंडरी शियर फोर्स क्या है, सेकेंडरी शियर फोर्स मींस यह है रेजिस्टिंग द मूवमेंट P इंटू ई, राइट. जैसे मैंने बताया कि P इंटू ई आपका क्लॉकवाइज है, तो सेकेंडरी शियर फोर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी. और ये सेकेंडरी शियर फोर्स जो है ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट करेगी, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट यहाँ पे बनेगा, दैट इज द टॉर्शनल मूवमेंट. तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी शियर फोर्स जो डेवलप होगी, सेकेंडरी शियर फोर्स ड्यू टू कौन सा होगा, टार्क से होगी. तो अगर मैं टार्क इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस लिखूं, इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, सेकेंडरी इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या है, इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू T इंटू आर बाई जे, यही होता है इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. टाउ इज इक्वल टू T अपॉन आर बाई जे, राइट. तो जहां से T आपका क्या है, T आपका आ गया टॉर्क, T आपका क्या है, टॉर्क है. R मींस रेडियल डिस्टेंस between the radial distance of the rivets from the CG, right. J आपका आ गया polar moment of inertia, polar moment of inertia. J is polar moment of inertia. तो from this equation you have seen that therefore हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tau proportional to r, ऐसा लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू आर. जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया था कि जो आपका शियर स्ट्रेस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिवर्स
टू द सेंट्राइड ऑफ द रिवर्ट सिस्टम। यही बोला था फर्स्ट कंडीशन में। तो जहां से आपको जो पता लगा कि ये आपका shear stress जो है, secondary shear stress, that is directly proportional to radial distance of the rivets as per this equation। तो जहां से आपको क्या पता चला कि जो रिवर्ट्स आपकी सेंट्राइड से जितनी ज्यादा दूरी के ऊपर होंगी, जितने ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगी, वो रिवर्ट्स में क्या होगा, shear stress आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जो रिवर्ट्स सेंट्राइड से जितनी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होंगी, क्या होगा, वहां पे आपका shear stress, सेकेंडरी shear stress आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और जो जितने ज्यादा कम डिस्टेंस के ऊपर होंगी, वहां पे उसका क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपका टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, तो टाउ से क्या है, सेकेंडरी shear फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू आर होगा। देयरफॉर सेकेंडरी shear फोर्स में इसको P डबल डैश से डोनेट किया है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? दैट इज द रेडियल डिस्टेंस। If the secondary shear stress is directly proportional to radial distance, then secondary shear force is also directly proportional to the radial distance। or you can say, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P डबल डैश this is equal to C into R, right? P डबल डैश this is equal to C into R। इसको मिटा लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ, मैं कहता हूं आपका P डबल डैश A C इंटू आर ए, P डबल डैश B C इंटू आर बी, P डबल डैश C इंटू आर सी, एंड P डबल डैश D C इंटू आर डी, राइट? ये चार रिवर्ट्स के ऊपर जो आपकी शेयर स्ट्रेसेस हैं, अगर आपका P प्रोपोर्शनल टू सी आर है, सेकेंडरी शेयर फोर्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू आर, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। C क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वेयर C को लिख लेते हैं यहां पे, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality। C is the constant of proportionality। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सेकेंडरी shear फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए, या उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें C की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, C की वैल्यू चाहिए कि C की हमारी क्या वैल्यू होगी, राइट? सो देखिए, चलो देखिए आगे। तो इसके भी डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ये आपका सी जी है ना, ये आपका आ गया आर, ये मैं डिस्टेंस लेता हूं आर ए ना, ये आपका डिस्टेंस आ गया आर बी, ये आपका आर डी, एंड ये आपका आ गया आर सी। समझाई? ये आपके आगे डिस्टेंस। सो अब देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अब हमें क्या निकालना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, क्या करना पड़ेगा, टेक द मूवमेंट एट द सेंट्राइड, टेक moment
टेक मूवमेंट एट जी, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो टेक मूवमेंट एट जी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डबल डैश A इंटू आर ए, राइट, प्लस P double dash V into RC, because all these are the anti-clockwise direction, plus RV plus P double dash C into RC plus P double dash into D, P double dash D इंटू आर डी। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बोथ आर इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू पी इंटू ई। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या था इसका, जहां पे कौन सा मूवमेंट क्रिएट हुआ था, पी इंटू ई। सो दिस मूवमेंट व्हेन वी हैव टेकन द मूवमेंट एट दिस जी, तो जो सेकेंडरी शेयर फोर्स का मूवमेंट होगा, दिस मूवमेंट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो मूवमेंट होगा आपका, दिस मूवमेंट, दिस होल ऑफ द मूवमेंट, ये आपका सपोज करो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, और ये आपका कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। समझाया? अब देखिए, ये मैंने वैल्यू लिखी थी, अब P डबल डैश ए क्या है, सी आर ए है, राइट, तो मैं P डबल डैश ए की जगह सी आर ए लिख सकता हूं, तो ये क्या आ गया, देयरफॉर C इंटू आर ए स्क्वायर, राइट, प्लस C इंटू आर बी स्क्वायर प्लस C इंटू आर की स्क्वायर, ये सारे वैल्यू कर लो, P डबल डैश दिस PV क्या है, CRB है, P डैश C, P डबल डैश C, CRC एंड P डबल डैश CRD, प्लस P डबल डैश क्या है, C इंटू आर टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P इंटू E, राइट, यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने क्या किया, P डबल डैश A, P डबल डैश B, P डबल डैश C एंड P डबल डैश D की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C जो मैंने ऊपर निकाली थी, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। तो जहां से आपको तो C की वैल्यू मिल गई, C क्या है आपका, P इंटू E डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, आर सी स्क्वायर एंड आर डी स्क्वायर, राइट, यू अंडरस्टैंड दिस। C की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आपका P डबल डैश A निकल जाएगा। जब C की वैल्यू मिल गई तो क्या आएगा इसमें, यहां से लिख लेते हैं P डबल डैश A, C की जगह ये पुट करो, क्या था ये, C इंटू आर ए थे ना, तो दिस इज इक्वल टू C क्या है, P इंटू E कोई आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर, है ना, इंटू आर ए। इसी तरीके से P डबल डैश A निकल गया, P डबल डैश B निकल गया, P डबल डैश D निकल गया एंड P डबल डैश C निकल गया। यू हैव कैलकुलेटेड आर द वैल्यूज, है ना, P डबल डैश A, P डबल डैश B, P डबल डैश C। तो अब देखिए, जहां तक इट इज क्लियर टू यू, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। हमने क्या किया, टॉर्शनल इक्वेशन से ये कंसेप्ट हमने ड्राइव किया। टॉर्शनल, क्योंकि जहां पे क्या था, देखिए पीछे जाइए आप, जब जहां पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हुआ, तो ये जो मूवमेंट था ये कौन सा था, टॉर्शनल मूवमेंट था, बिकॉज दिस इज
एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एक्सिस। तो टॉर्शनल मूवमेंट था, तो टॉर्शनल मूवमेंट से जो रेजिस्टिंग मूवमेंट होगा वो क्या होगा, ड्यू टू टार्क होगा। तो हमने टार्क इक्वेशन लिया, T इज इक्वल टू, राइट, T इज इक्वल टू सॉरी नॉट T, टाउ इज इक्वल टू TR अपॉन J। तो वहां पे जो टाउ मीन्स shear force, shear stress, that is directly proportional to the you can say radius, है ना, R, टाउ प्रोपोर्शनल टू R। तो जहां से हमें ये मिला कि जैसे जैसे इनका रेडियल डिस्टेंसेस जो आपका रिवर्ट्स का है वो आपका एक्सीड होता जाएगा, तो क्या होगा, उस वो रिवर्ट्स के ऊपर स्ट्रेस क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियल डिस्टेंस का मिनिमम होगा वहां पे स्ट्रेस कम होगी, राइट। वहां तक हमने कर लिया, और जहां से फिर हमने कैलकुलेशंस किया इसका कि अगर आपका टाउ प्रोपोर्शनल टू R है तो इसका मतलब शियर फोर्स दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू R, P प्रोपोर्शनल टू R, दिस इज इक्वल टू P प्रोपोर्शनल टू C इनटू R। C की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली बाय इक्वेटिंग द टू मोमेंट्स एट द सेंटर, और जहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपकी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो है ये आपकी पूरी डेरिवेशन हो गई, और ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। अब इसमें देखिए जहां तक तो हो गया आपका, ये क्लियर हो गया सारा। अब हमें डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए ये आपकी प्राइमरी फोर्स है, ये आपकी सेकेंडरी फोर्स, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी ये प्राइमरी एंड ये सेकेंडरी, और ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो नेचुरली इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो रिजल्टेंट हमें उसका निकालना पड़ेगा कि जहां पे आपको देखना है कि जो आपका एंगल है वो कौन सी रिवर्स है, जिन रिवर्स के ऊपर आपका एंगल आपका मिनिमम है, जिन रिवर्स के ऊपर आपका एंगल मिनिमम होगा, राइट। तो जहां पे जो एंगल आपका मिनिमम होगा, एंगल मिनिमम, और जहां पे एंगल मिनिमम होगा बिटवीन प्राइमरी shear force and secondary shear force, जहां पे एंगल आपका मिनिमम होगा वहां पे क्या होगा, दैट रिबट इज मोर क्रिटिकल, और यू कैन से दैट इज मोर हैवीली लोडेड कर लीजिए, उसको हम कहते हैं हैवीली लोडेड रिबट। जहां पे आपका एंगल मिनिमम होगा हैवीली लोडेड रिबट है। अब ये है कि जहां पर भी आपका एंगल मिनिमम हो सकता है, जहां पर भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, हमने ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कहां पे होगा, जहां पे मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो रिबट आपकी, मैं सपोज रिजल्टेंट डी का भी निकालता हूं, बी का भी निकालता हूं, तो चलो जहां पे मैं रिजल्टेंट, इसको आगे क्या करना है, तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए आप, मैक्सिमम पी, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, प्राइमरी शेयर फोर्स का स्क्वायर जो भी होगा प्लस सेकेंडरी शेयर फोर्स का स्क्वायर, जिसकी भी आप लेंगे, अगर आप इस जगह डी की लिखते हैं तो आप लिखेंगे पी डैश डी का होल स्क्वायर प्लस पी डबल डैश टू पी डबल डैश डी का होल स्क्वायर, है ना। इसको इससे लिखो होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर प्लस 2 पी डैश पी डबल डैश इंटू कॉस थीटा। तो थीटा ये आप एंगल इधर से कैलकुलेट करेंगे, जो आपको डायग्राम दिया होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये आपने देखना है कि रिजल्टेंट इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, जो आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, आइदर रिवर्ट बी का जो वैल्यू पुट करने के बाद या रिवर्ट डी का जो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, उस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे अपना, तो वो आपकी रिवर्ट क्या होगी, ज्यादा क्रिटिकल होगी, वो रिवर्ट की क्या होगी,
रिबट क्रिटिकल होगी और उसमें आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो P रिजल्टेंट कहां पे मैक्सिमम होगा? वेयर थीटा इज मिनिमम। ये तो एक पॉइंट याद रखना आपने। देयरफॉर टाउ क्या होगा? टाउ मैक्स अगर आपने निकालना है, टाउ मैक्स क्या आएगा? P रिजल्टेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डी स्क्वायर। सो π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो अगर आपको टाउ मैक्स दिया है, राइट, अगर आपको टाउ की वैल्यू दिया है तो P रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो जहां पे आपको डायमीटर ऑफ द रिबट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन कि कौन सी रिबट ज्यादा क्रिटिकल है और हमें कितना डायमीटर रिबट का और रिबट होल का हमें रखना पड़ेगा, सो दैट विल विथस्टैंड दिस डिजाइन। यू अंडरस्टैंड दिस? So this is about your eccentric loading riveted system. So I think this is very much clear to you. इसको मैंने काफी डिटेल में everything I have given to you. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको ज्यादा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अभी मैं इस लेक्चर में नहीं लूंगा, ऑलरेडी इट इज थोड़ा लेंथी है, बड़ा लेक्चर हो गया। तो इसका प्योरली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके ऊपर ही 1-2 न्यूमेरिकल होगा, जिससे आपका सारा कंसेप्ट, जहां पे आपको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। राइट? थैंक यू वेरी मच।